हेलो and गाइस। the amount of the cup मैं dish बैठी हूँ ratio रूम and पे, the पढ़ रही asymmetry हूँ of the और cup तो dish कुछ कर ratio नहीं सकती। between the मुझे two मैंने eyes. जैतून का तेल लगा If दिया है, सर the पे मैंने तेल cup लगा dish दिया, कल ratio मुझे is नहाना है। asymmetry is more than इसलिए 2, ओपीडी बहुत ही then एक्टिव जा रही that है is गाइस। quite 50 significant. For 50 example, 70 if 70 one eye 80 has पेशेंट जा cup रहे हैं dish अगर ratio सुबह of के। 0.3 and other eye जब भी मैं has रूम cup पे dish आती हूँ ratio बीच of में 0.7, 1:30 2 बजे, then तो of फटाक से course फ़ोन आता है there's कि पेशेंट आ गया, फिर जाना पड़ता asymmetry है। in the cup dish 3 बजे तक ratio ही which फ्री हो is पा रही हूँ मैं। बहुत quite हेक्टिक जा रही है significant. ओपीडी, अब पता नहीं कब रोस्टर चेंज होगा। And these are some अब देखो examples सर of क्या करते visual हैं, field डॉक्टर्स भी नहीं है defects ना seen आजकल, in इसलिए मैं पढ़ glaucoma. रही हूँ। थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, Here, फिर सो जाऊँगी। this रात को मैं खाना central खाती हूँ नहीं, this is the blind spot, और सो and जाऊँगी मैं you 10 can साढ़े see 10 a तक nasal बुक्स बंद करके। step here. This is kind of बाकी a देखते हैं early आगे क्या glaucomatous कर सकते damage, हैं। and this is the blind spot, and this is गाइस in the टॉपिक है ग्लूकोमा। left eye. There's a आज मैं ऑक्सर पढ़ paracentral रही हूँ। scotoma here, and there's a temporal wedge shaped scotoma here. There's altitudinal field defect, which means the entire superior half of the visual field is lost, and there's arcuate defect, and there's advanced glaucoma with relatively spare in the central island of small part of the vision. And the most important thing in the visual fields is these visual field defects obey the horizontal midline. They don't cross the horizontal midline, as compared to the neurological type of visual fields where they obey the vertical midline. The most important thing is these glaucoma patients are mostly asymptomatic. That's why we call them call it silent killer of vision. Since they become advanced stage, they don't present, and they present with advanced stages of glaucoma with tunnel vision. Therefore, and by that time, there's very little that we can do. Uh, Only thing is acute glaucomas can present uh, early, and they can present with painful red eyes, clouding of vision associated with ipsilateral headache, nausea, vomiting, and so these kind of patients mostly present into OPD setup with very high sudden onset, high हेडेक, नोसिया, eye वॉमिटिंग। pain plus headaches, and they may be end up in medical wards doing all sort of investigations, including CTs and MRIs, and but ultimately they can be diagnosed as acute glaucomas. For example, acute angle closure attacks, phacolytic glaucomas, and phacomorphic glaucomas. So things to remember here is if patient coming with sudden onset of severe headache, painful red eye, just have a look at the eye, and if the eye is looking congested, red, and cloudy cornea, just think of acute glaucoma as well and refer patient to a eye unit rather than planning for all sort of investigations. तो क्या आपका लग छुट्टियों पर गया हुआ है? आप यहाँ मेहनत करे जा रहे हो और उसने डू नॉट डिस्टर्ब लगा रखा है। इसका रिलेशनशिप आपके मोबाइल नंबर से हो सकता है और आपके मोबाइल नंबर for all sort of investigations. These are some examples of acute glaucoma. This patient has congested red eye, hazy cornea, mid-dilated and non-reactive pupil, and he will have very poor vision. And again, there's another patient with a diffusely congested eye, hazy cornea, and in this patient, there's a diffusely congested eye, hazy cornea, and you can see there's a mature cataract. So these two patients are having angle closure glaucoma attacks, and this patient is having a phacolytic glaucoma attack. So if a patient coming with like this, just have a look at the eye, and if it looks so congested with these hazy corneas, and get an ophthalmological opinion before proceeding with other investigations. So So basically, when we are taking an antenatal history, all history in different departments all have a fixed format, and it's better to stick to the format so that you know in your mind, you have sort of a checklist. You know what all has to be asked,
and you know in what order it has to be asked. The order may vary slightly. Nobody is going to penalize you for taking dietary history before personal history, but some things, especially in the beginning, have to come in order. It makes more sense that way. For the simple reason it makes more sense to whoever you're presenting the case to. So the format we have is we of course start with identification details. Then we go to the and I'll be explaining all these in a little bit more detail. Then we go to the parity index, the last menstrual period, the estimated date of delivery, and the period of gestation. Then we discuss the chief complaints. Then history of presenting complaints. This is very similar to your medicine and surgical histories. Then this is different from, of course, your medical and surgical in medicine and surgery. This is history of present pregnancy. That is, we describe the events of the present pregnancy in more detail. Then we discuss the past obstetric history if she has a past obstetric history. Then, of course, the menstrual history. Then the past medical or surgical history, the dietary history, personal history, and also family history, which I forgot to include here. Okay, so this is the basic format. So as I said, it's always important to have a checklist. There's a very nice book by a very famous doctor, Dr. Atul Gawande. He writes a lot of books. One of his famous book is the Checklist Manifesto. So in that it details how important it is to have checklists for everything you do in day-to-day life, more so in the medical practice, because by having checklists we don't forget, and by doing these repeatedly we know, we have it in our mind, in the back of our mind, that these things we have to ask. So let's start with identification details. Of course, okay, so this is very simple, but why is it important? You should know. So number one is the name. The name of the patient is very important. Now, if I go and address the patient for say by bed number 2 or bed number 13, that doesn't seem nice. The patient always likes to be appreciated if you call her or him, in our case her, by names. The name of the patient is very important. When you address the patient repeatedly by her name, she feels nice. She feels that you've developed a bond with her, a rapport with her, so the patient will open up to you rather than just addressing her by a prefix like Miss or Mrs. It's always better to call her by name. Second is the age. Now, the age of the patient, and also in between, if anybody has any doubts, you can always stop me and ask, okay, or you can enter in the chat box. Second is age. So age of the patient is also very important, especially in obstetrics. Why? Because extremes of age. Okay, so less than 18, that is teenagers, and more than 35, this is elderly. If they're primary gravida, we call them as teenage primary or elderly primary. Both are high risk pregnancies. A teenage primary is at risk of several complications, for example, hypertension in pregnancy, or late anemia, malnutrition, then CPD. So these are more common in the younger age group. In the older group, also chronic diseases are more common. So hypertension, diabetes, she may have a pre-existing condition. So these are more common. There's a higher risk of genetic diseases. There's a higher risk of congenital anomalies. There's a higher risk of abortions. So simply one simple if you statement about the age gives a lot of idea whether she is high risk or low risk, because the age itself is a risk factor. So this is very, very important. You can't ignore age. Okay, next is the education. Again, very important. Depending on the education status of the patient, we would have some idea about how aware. इतना लंबा खींच रही। एजुकेशन कौन पूछता है पेशेंट की? अलग ही चूतिया भयंकर। Hi, my name is Priyanka and I am pursuing Masters in Public Health at Asim Premji University. अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री टेकिंग। इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री कैसे ली जाती है और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री के। जब थर्ड ईयर से आपकी क्लिनिकल रोटेशंस लगती है डिफरेंट वार्ड्स के अंदर, तो जो पहली चीज़ आपको आनी चाहिए वो हिस्ट्री टेकिंग है। हिस्ट्री टेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और थर्ड ईयर में आपको मास्टर कर लेना है कि हिस्ट्री कैसे ली जाती है। हिस्ट्री आपको 80% डायग्नोसिस तक पहुंचा सकती है पेशेंट के। ठीक है, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, अगर आपने उसकी प्रॉपर अच्छे से हिस्ट्री ली है
तो आप 80% आप उसको डायग्नोस कर सकते हो कि उसको क्या बीमारी है, और उसके बाद 20% आप उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस करवाकर उसको डायग्नोस कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ हिस्ट्री से आप 80% पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि एक प्रॉपर और अच्छे से हम हिस्ट्री कैसे ले सकते हैं पेशेंट की। लेट्स डिस्कस द हिस्ट्री टेकिंग, आर्ट ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग एक आर्ट होती है जो कि आप रेपिटेटिव, आप जब भी वार्ड में जाएं आप हिस्ट्री लें, पेशेंट्स की बार बार हिस्ट्री लें, सिर्फ हिस्ट्री लें 3rd ईयर में आप उसको मास्टर कर लें। तो आप जब बार बार हिस्ट्री लेंगे तो आप आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग में मास्टर बन जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस द हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग पर आने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ड्रेस प्रॉपरली होना चाहिए। आप जब वार्ड में जा रहे हैं, आप किसी पेशेंट के पास जा रहे हैं, तो आपने अपना एप्रन, वाइट कोट पहना होना चाहिए, स्टेथोस्कोप आपके गले में होना चाहिए। इससे ये क्या होता है कि आपका पहला इंप्रेशन जो पड़ेगा पेशेंट के ऊपर, पेशेंट आपको डॉक्टर ही समझे, आपको स्टूडेंट समझेगा या कोई और समझेगा, आप ऐसे ही रैंडमली क्लास में चले जाओगे बिना एप्रन पहने या फिर स्टेथोस्कोप के, तो वो आपको प्रॉपरली अपनी हिस्ट्री नहीं देगा। तो आपने प्रॉपरली ड्रेस होना है। उसके अलावा एग्जाम्स में तो अगर आप ड्रेस नहीं होंगे प्रॉपरली तो उसमें आपकी नंबर भी कट सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, जब भी आपने वार्ड में जाना है पेशेंट के बेड के पास, तो पेशेंट की राइट साइड से आपने पेशेंट को अप्रोच करना है, लेफ्ट साइड से या सामने से अप्रोच नहीं करना। ऑलवेज अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, तो अगर आप राइट या लेफ्ट हो जाते हैं तो उसमें भी आपके एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। तो सेकंड चीज़ आपने ये जहन में रखनी है हिस्ट्री टेकिंग से पहले। उसके बाद चीज़ आती है डेमन्योर ऑफ द पेशेंट। डेमन्योर ऑफ द पेशेंट का मतलब क्या है कि अभी हिस्ट्री आपने स्टार्ट नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही जब आप जाओगे पेशेंट के पास, आप पेशेंट को देखोगे तो आप ऑब्जर्व करो पेशेंट को फ्रॉम द हेड टू टो। ठीक है, कुछ पेशेंट्स आपको नजर आएंगे जिनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही होगी। ठीक है, वो सांस ले रहे होंगे, बड़े बड़े सांस ले रहे होंगे, तो आप पहले से उसको देख सकते हो कि शायद इसको लंग्स की या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उसको वीजिंग की आपको आवाज़ें आ रही होंगी। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व करना है पेशेंट को फ्रॉम द हेड टू टो बिफोर द हिस्ट्री टेकिंग, तो आपको हिस्ट्री में उसकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग से पहले 3 चीज़ें आपने देखनी है। क्या क्या? आपको ड्रेस प्रॉपरली होना चाहिए, ऑलवेज अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम द राइट साइड, और उसके बाद डेमन्योर ऑफ द पेशेंट। ऑब्जर्व करना है पेशेंट को कि उसमें क्या चेंजेस आ, पेशेंट्स किस तरीके की चेंजेस हैं, कोई उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं हो रही है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो नहीं है उसको। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, कुछ भी नहीं पूछना आप। उसके बाद आपने हिस्ट्री टेकिंग स्टार्ट करनी है राइट साइड से। ठीक है, अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम राइट साइड। उसके बाद सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस कराना है अपने आप को, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लस द टेक कंसेंट। अब आप गए पेशेंट के पास, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है पेशेंट को। ठीक है, आप कह सकते हो आई एम डॉक्टर, फॉर सपोज आई एम डॉक्टर उसामा या फिर डॉक्टर XYZ। ठीक है, एंड आई एम द पार्ट ऑफ द टीम ऑफ डॉक्टर्स दैट इज एग्जामिनिंग यू। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ डॉक्टर्स की जो कि आपका मुआयना कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं मैं 3rd ईयर 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ जो कि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद ऑलवेज टेक द कंसेंट। आप पेशेंट को बताएं कि मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, तो आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप उसका पहले पेशेंट से उसका आप कंसेंट लें कि मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूं। ठीक है, तो आप उस तरीके से सवाल पूछ लें। तो एग्जाम में तो आपको ऐसा ही करना है कंसेंट, लेकिन अगर आप रैंडमली जाते हैं कभी भी वार्ड में, डेली जो पोस्टिंग होती है आपकी, तो काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, अगर आप उनसे इस तरीके से पूछते हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं, तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं बार बार उनसे पूछ रहे होते हैं, तो वो नॉर्मली आपको मना कर देंगे। आपने सिंपली जाना है, आपने जाकर पूछना है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब दे दें। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली कंसल्ट लेंगे तो काफ़ी पेशेंट्स आपको मना कर देंगे, क्योंकि बार बार उनके पास स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, तो इस चक्कर में आपको मना भी कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको पेशेंट्स का इंट्रोडक्शन लेना है। कंसल्ट ले लिया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लिया आपने। उसके बाद आपको पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल पेशेंट की आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, पेशेंट्स इंट्रोडक्शन या फिर बायोडेटा ऑफ द पेशेंट, कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो पेशेंट्स इंट्रोडक्शन, फॉर सपोज बायोडेटा या इंट्रोडक्शन हम लेते हैं पेशेंट का, तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पूछनी है, लेट्स डिस्कस। यहाँ से प्रॉपर हिस्ट्री शुरू हो रही है पेशेंट की। और हिस्ट्री टेकिंग क्या है? पेशेंट का एक इंटरव्यू है उसकी बीमारी के मुतालिक। ठीक है, इंटरव्यू ऑफ पेशेंट अबाउट हिज डिजीज। ठीक है, सिंपल इज दैट। उसके बाद अब पेशेंट्स इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें पूछनी है। नंबर 1 इज द नेम ऑफ द पेशेंट और फादर या फिर हस्बैंड नेम। ठीक है, नेम और फादर नेम, अगर फीमेल मैरिड है तो उससे फिर आपको उसको हस्बैंड नेम भी पूछेंगे। अब नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है?
काफ़ी बार वार्ड के अंदर एक ही नाम के 2 या 3 पेशेंट्स होते हैं, तो वो मिक्सअप ना हो जाए हिस्ट्री टेकिंग के अंदर, तो इसलिए ऑलवेज मेंशन द फादर या फिर हस्बैंड नेम, अगर फीमेल मैरिड है तो ये इंपॉर्टेंट होता है मेंशन करना। सेकंड चीज़ आपको पूछती है एज। अब एज हिस्ट्री टेकिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ डिजीजेस होती हैं जो कि एज रिलेटेड होती हैं, ठीक है। फॉर सपोज मैं आपको बोलूँ, कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसको रेक्टम से ब्लीडिंग हो रही है और उसकी एज है 60 ईयर, तो आप सोच सकते हो डायग्नोसिस में कि इसको कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है, रेक्टम का। लेकिन अगर कोई वही पेशेंट आता है, 10 साल का कोई बच्चा है, उसको रेक्टल से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप कार्सिनोमा का नहीं सोचोगे, ठीक है। तो एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ डिजीज एज से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद जेंडर है, तो जेंडर भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जेंडर आप पता लग जाएगा आपको देखते ही पेशेंट को, जेंडर मेल है फीमेल है, ठीक है। तो जेंडर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ डिजीज होते हैं जो कि फीमेल में होती हैं, कुछ डिजीज होते हैं जो कि मेल्स में प्री डिस्पोज होते हैं, ठीक है। तो इस डिजीज का भी आपको पता लग सकता है, ठीक है। उसके बाद मार्शल स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर मार्शल स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है कि फीमेल मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो ये भी आपने पूछना है। उसके बाद रिलीजन। Guys, look at this result. So आज मैं शेयर करूंगी मस्ट हैव प्रोडक्ट। जब भी हम कोई हेयर स्टाइल क्रिएट करते हैं, हमें फेस करना पड़ता है अनइवन हेयर लाइन, बॉल्डनेस एंड ग्रे हेयर। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो। अनइवन हेयर लाइन को भी फिक्स कर सकते हैं, बॉल पैच या ग्रे हेयर को भी इजीली कवर कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आप खुद से देख सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है एंड हेयर के लिए पूरी तरीके से सेफ है। सो कोई भी हेयर स्टाइल आप क्रिएट करें, एथनिक या फिर वेस्टर्न, आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कर सकते हैं। ये है रैनी कवरअप। मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो ये भी आपने पूछना है। उसके बाद रिलीजन भी इम्पॉर्टेंट होता है। इन केसेस में कुछ मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। तो उनकी आपको पता है कि उनकी लिविंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप फॉर सपोज करें हिंदूज़ हैं, तो उनका डाइट चेंज होती है। वो नॉर्मली जो ज़्यादातर वेजिटेरियंस हैं, तो उनमें फिर आपको एनीमिया मिल सकता है। तो डिफरेंट बीमारियां आपको रिलीजन वाइज भी मिल सकती हैं कंडीशन में, ठीक है। तो आपको रिलीजन भी पूछना है। उसके बाद रेजिडेंस भी आपको पूछना है उसका, सिंपल कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंट वो इलाका बता सकता है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो उस इलाके की वजह आप इलाका देख के आप बता सकते हैं कि उस इलाके की कंडीशन क्या है, सैनिटरी की कंडीशंस क्या होती हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन तो नहीं है ज़्यादा, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, पेशेंट आपका करता क्या है, ठीक है। काफ़ी ऑक्यूपेशंस होते हैं जो कि डिजीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको पूछना है आप क्या करते हैं, आपने कोई डिटेल नहीं लेनी ऑक्यूपेशन की, सिंपली आज के पेशेंट कि आप करते क्या है काम, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। आप यहाँ पर एडमिट कब हुए हॉस्पिटल में, आपको वो डेट मेंशन करनी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद मोड ऑफ द एडमिशन, ठीक है। वार्ड के अंदर आप एडमिट हुए हैं, तो मोड ऑफ एडमिशन क्या है, क्या आप ER एमरजेंसी से आए हैं या OPD से आपको रेफर करके यहाँ पे वार्ड में एडमिट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट की कंडीशन का आपको पता लग जाएगा इससे। अगर कोई ER से एमरजेंसी से आकर एडमिट हुआ है, इसका मतलब वो क्रिटिकल था स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पर एडमिट हुआ है, तो OPD में यानी नॉर्मली एडमिट किया गया है, ठीक है। तो आपको पेशेंट की कंडीशन का पता लग जाएगा। उसके बाद कोमॉर्बिड्स। कोमॉर्बिड सिंपली क्या होता है कि ऐसी पेशेंट आया है किसी बीमारी से, लेकिन पहले ही पेशेंट को कोई बीमारियां मौजूद होती हैं जिसका इलाज उसका चल रहा होता है, तो उन्हें हम कहते हैं कोमॉर्बिड। अब इंडिया पाकिस्तान में नॉर्मली आपको कोमॉर्बिडी मिल जाएगी, उसमें आपको अस्थमा, ठीक है, जो पेशेंट के अंदर ज़्यादातर मौजूद मिलेगा आपको, अस्थमा, डायबिटिक मेलाइटिस, ठीक है, शुगर आपको मिल जाएगी या फिर हाइपरटेंशन, ठीक है। तो पहले से पेशेंट को जो बीमारियां हैं जिनका इलाज चल रहा होता है पहले से काफ़ी सालों से मौजूद है, तो अस्थमा, डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, तो इन्हें हम मेंशन करते हैं कोमॉर्बिड्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारा पेशेंट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 पे। यहाँ पर आएगा प्रेजेंटिंग कंप्लेन, या फिर इसे हम चीफ कंप्लेन भी कहते हैं, PC, ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन या फिर चीफ कंप्लेन। अब प्रेजेंटिंग या चीफ कंप्लेन सिंपली क्या चीज़ है कि प्रॉब्लम विच ब्रॉट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, पेशेंट का वो मसला जिसकी वजह से हॉस्पिटल आया है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन सिंपली क्या है कि फॉर सपोज अगर पेशेंट आता है, उसको बहुत सारी बीमारियां पहले ही हैं, ठीक है, वो पेशेंट आपको बहुत सारी बीमारियां बता रहे होते हैं। आपने ये पूछना है कि आप यहाँ पर किस मसले से आए हैं, ठीक है। वो कहेगा बुखार से आया हूँ, तो सिंपल प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपकी फीवर होगी, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन वो कंप्लेन होगी जिसकी वजह से मजबूर होकर पेशेंट हॉस्पिटल तक आया है, चाहे उसको पहले ही कोई नी के अंदर पेन हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर वो बुखार की वजह से आया है
एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल के अंदर, तो वो हमारी फीवर हमारा प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगा, नी पेन हमारा प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं होगा। तो सिंपल आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, एक अच्छे से प्रेजेंटिंग कंप्लेन आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अ गुड प्रेजेंटिंग कंप्लेन शुड हैव 6 इंग्रेडिएंट्स। 6 चीज़ें जब एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन में होंगी तो वो एक बेस्ट और अच्छी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी। वो कौन कौन सी होनी चाहिए? नंबर 1 शुड बी द प्रॉब्लम दैट ब्रॉट द पेशेंट टू हॉस्पिटल। वो वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल आया, प्रेजेंटिंग कंप्लेन वही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया फीवर की वजह से आया तो फीवर प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, सिंपल। उसके बाद नो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। प्रेजेंटिंग कंप्लेन में कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपने ऐड नहीं करनी, जो पेशेंट आपको बता रहा है आपने वही लिखना है। अगर पेशेंट आपको बता रहा है कि मेरा सांस फूलता है, आपने लिखना है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपने ये नहीं लिखना कि डिस्पनिया, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपने कभी भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन में यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो पेशेंट की लैंग्वेज में आपने लिखनी है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है शुड बी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। प्रेजेंटिंग कंप्लेन जब भी आप लिखोगे प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी जब आप स्टेटमेंट देते हैं वो ऑब्जेक्टिव उस सूरत में होती है कि उसका कोई मीनिंग हो, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है उसकी कोई मीनिंग समझ नहीं आ रही होती। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। कोई पेशेंट आकर आपको बोलता है कि मुझे इनडाइजेशन हो रही है, बदहजमी हो रही है, तो उस कंडीशन में आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या लिखोगे? अगर मैं पढ़ता हूँ कहीं पे इंडाइजेशन है तो मैं उससे क्या लूँ? क्या इसको दर्द हो रहा है कहीं पे, क्या इससे डायरिया हो रहा है या इसे कॉन्स्टिपेशन, तो मुझे पर्टिकुलर पता नहीं लग रहा क्या मसला है इसके साथ। तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। सिंपली हमारे पास ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होनी चाहिए कि यहाँ पर मुझे पेन है, मुझे डायरिया है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होनी चाहिए प्रेजेंटिंग कंप्लेन। उसके बाद पेशेंट्स ओन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। जो पेशेंट बता रहा है ना वही होनी चाहिए प्रेजेंटिंग कंप्लेन में। आपने एक और चीज़ होती है, जब आपने कहा पेशेंट को आप किस मसले से आए, वो जो बता रहा है आपको बीच में उसको इंटरप्ट भी नहीं करना। जो पेशेंट बता रहा है आपने वो सुनना है और उन चीज़ों को नोट डाउन करना है। और पेशेंट की ओन लैंग्वेज में होनी चाहिए प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अगर पेशेंट ने फीवर का तो फीवर है, ठीक है, आपको अपने वर्ड्स उसमें ऐड नहीं करने, ठीक है। उसके बाद इफ मोर देन वन प्रेजेंटिंग कंप्लेन पीसी देन राइट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, फॉर सपोज एक पेशेंट आया, उसको फीवर है और उसको वॉमिटिंग भी है, ठीक है, 2 प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, ठीक है। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो मसला, जो बीमारी उसको पहले हुई है उसे पहले मेंशन करना है और जो बाद में हुई है उसे बाद में मेंशन करना है। फॉर सपोज फीवर उसको है 15 दिन से, ठीक है, और वॉमिटिंग है उसको 7 दिन से, 7 डेज। तो पहले लाइन में आपने लिखना है फीवर फॉर, ठीक है, फीवर फॉर 15 डेज, और नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे वॉमिटिंग फॉर द 7 डेज, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहले लाइन में मेंशन करना है आपने फीवर जो कि 15 दिन से यानी पहले हुआ था, उसके बाद वॉमिटिंग जो कि 7 दिन से यानी उसके फीवर के बाद हुई है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने फॉलो करना है जब आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन। प्रेजेंटिंग कंप्लेन कभी भी एक अच्छी प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं हो सकती जब भी उसके अंदर ड्यूरेशन मेंशन ना हो। आपने फीवर लिख दिया, वॉमिटिंग लिख दिया, आगे आपको लिखना पड़ेगा 15 डेज और 7 डेज। तो ड्यूरेशन, ऑलवेज मेंशन द ड्यूरेशन इन द प्रेजेंटिंग कंप्लेन। तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, जिसे कहते हैं HOPC। सिंपल इज डैट कि जो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन ली है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अब आप उसको 1 बाय 1 उसको एलेबरेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, उन सब चीज़ों को जो एक्सप्लेनेशन देनी है प्रेजेंटिंग कंप्लेन की, उसे हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अगर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपने अच्छी से ले ली तो आप डायग्नोसिस तक इजीली पहुंच सकते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन डिफरेंट होती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स की। फीवर की होगी तो वो डिफरेंट होगी, पेन की होगी वो डिफरेंट होगी, वॉमिटिंग की होगी वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने आपको पेन और वॉमिटिंग के लिए बता रहा हूँ मैं कि उनकी हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछते हैं। उसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ की जो हिस्ट्री होती है आपकी बुक्स में भी वो मेंशन है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या, एलेबरेट एवरी प्रेजेंटिंग कंप्लेन इन द पेशेंट्स वर्ड।
ये भी पेशेंट्स के वर्ड में आपको एलेबरेट करना है। और ये स्टार्ट कैसे करनी है, आपने पेशेंट से पूछना है जब आप बिल्कुल सही से हेल्दी थे, उसके बाद ये बीमारी शुरू कैसे हुई, क्या मसले प्रॉब्लम आए शुरू में, फिर ये बीमारी क्या चलता रहा, ठीक है। तो आपको स्टार्ट से पूछना है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग अ पेन, और इन द पेशेंट्स वर्ड, जो पेशेंट कह रहा है वही लिखना है आपने इसके अंदर, अपने से कुछ ऐड नहीं करना। अब इसमें फॉर सपोज पेन हो रहा है पेशेंट को, अब पेन में क्या क्या पूछना है, साइट ऑफ द पेन, पेन कहाँ पर है, अपर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में, अपर राइट एब्डोमेन में, सेंट्रल एब्डोमेन में, कहाँ है राइट अपर लिम्ब में, कहाँ पर पेन है, तो वो पर्टिकुलर साइड ऑफ द पेन आपको मेंशन करनी है। उसके बाद ड्यूरेशन, कितने टाइम से पेन चल रहा है, ठीक है, 4 दिन से 5 दिन से, ठीक है, मेंशन करना है। उसके अलावा ड्यूरेशन के अंदर आपको ये भी मेंशन करना है, ऐसा तो नहीं होता कि पेन दिन में एक टाइम पर हो, फॉर सपोज किसी को पेन हो रहा है सिर्फ दोपहर में मुझे दर्द होता है, कोई पेशेंट कह रहा है उसके बाद दर्द नहीं होता, तो ये चीज़ें भी आपको मेंशन करनी पड़ेंगी ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद मोड ऑफ द ऑनसेट, ठीक है, मोड ऑफ ऑनसेट 2 हो सकते हैं, या तो ग्रेजुअल या फिर सडन। पेशेंट हेल्दी है, उसको कोई मसला नहीं है, ठीक है, और एकदम उसको पेन होने लग गया एब्डोमेन में, इसका मतलब क्या है, ये सडन ऑनसेट था पेन का, लेकिन पेन था पेशेंट को पहले भी हल्का हल्का पेन था, अब बढ़ गया है, इस वजह से वो हॉस्पिटल आया, तो इसका मतलब वो ग्रेजुअल ऑनसेट था पेन का, पहले भी पेन होता रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद सिवियरिटी, पेन की क्या सिवियरिटी है, चलो गाइस, मैं तो वही बहुत भूगत पढ़ के देखती हूँ कुछ आईपैड में, फिर सोऊंगी। वीना का फ़ोन आएगा, थोड़ा लड़के सो जाऊंगी, मूड ख़राब तो रोज़ करता ही मेरा वो। बाकी देखते हैं, अगर कॉल आएगा तो ठीक है, मैं तो कॉल करने वाली हूँ नहीं, मैं तो सो जाऊंगी, मेरी सुबह फिर ड्यूटी है, फिर परसों संडे है, परसों छुट्टी है मेरी। अभी कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े धोने हैं कल। अब एक काम करूँगी, कल देखती हूँ अगर कल टाइम मिला तो कल धो दूँगी, वरना परसों दूँगी, परसों मुझे नहाना नहीं है, कल मैं नहाऊँगी, परसों नहाऊँगी ना, इसलिए। चलो गाइस, फिर ब्लॉग को एंड करती हूँ मैं, वही मेरा गुड नाइट ब्लॉग है, क्योंकि अब मेरे पास कुछ करने को है नहीं, ना मैं कहीं जाऊँगी बाहर, ना कोई रूम में आएगा अब, है ना। भूख मुझे लग नहीं रही है, मैं बाहर की लाइट ऑन है, लाइट ऑफ करके अब बैठती हूँ रूम पे कुछ देर, 10 बजे गया है, 11 बजे तक मैं सो जाऊँगी गाइस। चलो बाय बाय गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, सारे ब्लॉग्स देखिएगा, एंजॉय करिएगा। आज दिन भर का मैंने ब्लॉग डाला, क्योंकि अस्पताल के मैंने ब्लॉग्स डालने नहीं, क्योंकि अस्पताल के ब्लॉग्स डाल के लोग देख रहे हैं, फिर डांट पड़ रही है मेरे को फालतू, अस्पताल वाले देख दे रहे हैं ब्लॉग मेरे, तो इसलिए मेरे को डांट पड़ जा रही है, इसलिए मैं अब अस्पताल के ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ अपने पर्सनल ब्लॉग कहीं जाऊँगी घूमने वूमने उसके बनाऊँगी, लेकिन अस्पताल का कोई भी ब्लॉग मिलेगा नहीं। तो चलो गाइस, सो जाओ, आप भी सो जाऊँगी मैं भी कुछ देर में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, बाय बाय, चीयर्स।